Good morning, students. Welcome in online live class. Students, today we are discussing on topic nutrition in human beings. In the last class, we are discussing nutrition in simpler animals. In today's class, we are discussing nutrition in human. Nutrition in human. First of all, we are discussing on general points of human's nutrition. First point is the human digestive consists of alimentary canal and associated gland. First point, human digestive system is divided. It consists alimentary canal and स्टूडेंट्स, यानी कि ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स में डिवाइडेड किया है। एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स में, यानी ह्यूमंस में एक तो होता है एक तरह से डाइजेशन के लिए पर्टिकुलरली ट्यूब्स होती हैं जिनको एलिमेंट्री कैनाल बोला गया है, और दूसरे ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनसे सीक्रेशन निकलता है जिन्हें ग्लैंड्स बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, द वेरियस organs in human digestive system. First of all, mouth. Second, esophagus. And the food pipe. Next, stomach. Next, small intestine and large intestine. Students, humans digestive system divided mainly some parts: mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. ये जो बात है वो एलिमेंट्री कैनाल के लिए, एलिमेंट्री कैनाल डिवाइडेड mainly mouth, esophagus, stomach, small intestine and large intestine, and three glands is also present. Glands से आपका salivary glands, pancreas and liver. Three glands which working there in human digestive system. Next, human alimentary canal. Human alimentary canal which run from mouth to anus, about the
9 मीटर लॉन्ग। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेके और आपके एनस तक होती है और लगभग 9 मीटर का क्या होती है, ये लॉन्ग होती है, लेकिन एक तरह से फोल्डेड कंडीशन में होती है तो बॉडी के अंदर एडजस्ट हो पाती है। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल ऑफ दीज जनरल पॉइंट्स इन न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, human digestive system is consist alimentary canal and glands. Second, the various organs in human digestive system: mouth, esophagus, food pipe, stomach, small intestine, large intestine. Next, glands, salivary glands, pancreas and liver. And next, human alimentary canal, which run from mouth to anus, aboutly 9 meter long. Next, First of all, we are going on ingestion process. इसके अंदर भी कोई 5 स्टेप्स है जो सेंट्रल ऑर्गेन के अंदर है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है इसमें इंजेक्शन का प्रोसेस। इंजेक्शन स्टूडेंट्स, इंजेक्शन का मीन है एक तरह से माउथ के अंदर फूड का जाना, अपने हाथों के जरिए से तोड़ के और फूड को माउथ के अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोला आपने, इंजेक्शन बोला। ऐसे किसके अंदर था, अमीबा के अंदर था। अमीबा किसके जरिए से लेता था, सीडोपोडिया के जरिए से, और ह्यूमंस कैसे लेते हैं, माउथ, हैंड्स के जरिए से। तो द ह्यूमन have a special organ। कौन सा स्पेशल ऑर्गन, हैंड। स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन of food, which is called mouth. This is called mouth. The food is put into the mouth with help of hands. Student, this is process of ingestion process. The human have a special organ for the ingestion of food, which is called mouth. Special organ है ingestion की process के लिए कौन सा, माउथ। अमीबा के अंदर कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं था, सीडोपोडिया की हेल्प से कोई वर्क करता था, लेकिन हमारे अंदर स्पेशल ऑर्गन कौन सा है, माउथ है। द फूड इज पुट इनटू द माउथ विद हेल्प ऑफ हैंड्स, और हम हैंड की मदद से क्या करते हैं, एक तरह से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, फूड को माउथ के अंदर ले पाते हैं। बात करेंगे सेकंड प्रोसेस की, डाइजेशन प्रोसेस। डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन सबसे पहले किसमें, एट माउथ। माउथ के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूँगा कि डाइजेशन की प्रोसेस होती क्या है। तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस, इन दिस डाइजेशन प्रोसेस large molecule convert into small molecule. This process is called digestion process. सबसे पहले किसके अंदर, माउथ के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस। तो
इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। द डाइजेशन ऑफ फूड begins in the mouth with the teeth cut the food into small pieces, chew and grind. And while the tongue help in mixing saliva with food. स्टूडेंट्स, बात करेंगे डाइजेशन की प्रोसेस क्या है। तो डाइजेशन की प्रोसेस माउथ के अंदर कैसे होती है वो वाली बात। द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस, स्टार्ट होता है इन द माउथ, इसके अंदर, माउथ के अंदर, विद द हेल्प ऑफ टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड। टीथ की मदद से क्या है, फूड को स्मॉल पीसेस में च्यू किया जाता है और ग्राइंड किया जाता है। व्हाइल द टंग हेल्प इन मिक्सिंग saliva with food. स्टूडेंट्स, saliva के जरिए से फूड को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है और इसके बाद एक तरह से फूड क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा इसके अंदर, माउथ के अंदर, और पूरी प्रोसेस हो पाएगी। यानी कि फूड कैसा हो जाता है, बॉलस टाइप कंडीशन हो जाती है, थोड़ा लसलसा टाइप हो जाता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, सलाइवा किसको डाइजेस्ट करती है। तो सलाइवा इज ए watery liquid, so it weighs the food in our mouth, the weighted food can be swallowed more easily. Next, the digestion of starch begins in the mouth itself. Students, next point, saliva is a watery liquid. saliva क्या है, एक watery liquid है, पानी के जैसा मटेरियल है।
सो इट वेट द फूड इनटू आवर माउथ। तो ये हमारे माउथ के अंदर क्या करती है, फूड को गीला कर देती है। द वेटेड फूड कैन बी स्वैलोड मोर इजीली। और ये जो वेटेड ये गीला फूड है ये बॉलस टाइप कंडीशन है। जब फूड के अंदर माउथ में स्लाइवा मिक्स हो जाती है तो उसको बोलते हैं बॉलस। और ये बॉलस और वेटेड फूड है ये क्या एक तरह से इजीली तरीके से डाइजेस्ट हो पाता है। नेक्स्ट बात करें, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। और जैसे स्लाइवा मिलती है तो स्टार्च का डाइजेशन यानी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ के अंदर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट ये जो बात थी वो डाइजेशन एट माउथ के अंदर थी। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे स्टमक के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं बीच का जो ईसोफेगस वाली कंडीशन है उसको क्लियर कर दूं। ईसोफेगस में कौन सी प्रोसेस होती है? That's clear, students. Any problem in this topic? Any problem? So you are comment in comment box. So clear this problem. Students, अब बात करेंगे हम ईसोफेगस के प्रोसेस के अंदर। ये आपको एक तरह से फूड पाइप की जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होता है, फूड पाइप के अंदर कोई भी डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है। द स्लाइटली digested food into in the mouth is swallowed by the tongue and goes down the food pipe called esophagus. When the slightly digested food enters the food pipe, the mouth, food pipe, the walls of food pipe, start contraction and extension movements. स्टूडेंट्स, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फूड पाइप के अंदर कौन सी प्रोसेस होती है। तो द स्लाइटली डाइजेस्ट फूड इन द माउथ इज swallowed by tongue and goes down the food pipe called esophagus. जो थोड़ा बहुत डाइजेस्ट फूड है वो स्लाइटली किस में चला जाएगा, मतलब एक तरह से कम जो डाइजेस्ट फूड है किसमें वो हो जाता है, esophagus और फूड पाइप वाले पार्ट्स में चला जाता है। और जैसे ही when the slightly digested food enter the food
जैसे फूड आपके इस गले वाले पार्ट में, फूड पाइप वाले पार्ट में जाता है, तो हमारे जो मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन, यानी कि उनमें एक तरह से क्या होगा, एक्सपेंशन का मतलब फैलना, कंट्रैक्शन का मतलब एक तरह से उनमें खिंचाव होना। तो खिंचाव और फैलने वाली कंडीशन से फूड क्या जाएगा, नीचे चला जाएगा स्टमक के अंदर। लेकिन आपके ईसोफेगस फूड पाइप में कोई डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो रही है, लेकिन फूड को माउथ से और स्टमक तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस होती है वो कॉन्ट्रैक्शंस और एक्सपेंशन का जो मूवमेंट है वो किसके अंदर होगा, फूड पाइप के अंदर होगा, ईसोफेगस के अंदर होगा। तो पूछा जा सकता है व्हाट इज वर्क इन डाइजेशन ऑफ फूड पाइप। तो फूड पाइप का वर्क क्या है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस को शो करना, जिससे कि फूड स्लाइटली फूड इज गो इनटू स्टमक। स्टूडेंट, आज के जो ये टॉपिक में हमने सिर्फ माउथ के बारे में, कुछ डाइजेशन के पॉइंट्स के बारे में और फूड पाइप के बारे में पढ़ा। आई होप दिस यू आर अंडरस्टैंड, आपको ये बात समझ आई होगी कि कैसे डाइजेशन होता है, कैसे नहीं होता। तो बाकी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी ये वीडियो यहीं तक है, ज़्यादा बड़ी करने से कोई फायदा नहीं है। स्टूडेंट, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर टुडे क्लास। बाय बाय स्टूडेंट्स।